Hi, my name is Rahul Srivastav and I once again welcome you all in our next video. Now, as you are aware, for most of the banks, the transfer season is almost over and many of you would be joining as an branch manager in various areas, in various other states. So, considering that aspect, today in our video, we have taken an initiative wherein we would be discussing exclusively on branch managership, the things that you need to start, the things that you should take care, and how to safeguard yourself. And once again, we are pleased to have Ghanikar sir with us, who has so many years of experience with him. So, Ghanikar sir, once again, welcome in this series. Yes, good morning. Thank you, Rahulji. Very good morning to sir also and our viewers also. So without wasting any further time, let us start our video. And before starting, I request every one of you to take a pen and a paper and jot down important points, because with experience, whatever sir is going to share with us is very important for all of us. So let's start our video. Yes. Sir. Yes, Rahulji. Good morning, and all friends. Very good morning. And first of all, I wish you all the best for your new assignments, and particularly those who will be taking branch managership. All the best to those. And today we will be discussing how your approach should be when you have been given branch managership. This will be helpful particularly for those who will be undergoing managership for the first time. So इसमें we will start with two important points. First is mental preparation, and then immediate works to be done, and then we will also discuss regarding some other points. तो इसमें पहले जो है, क्योंकि ब्रांच मैनेजरशिप इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक हम किसी के अंडर काम करते हैं तो वी हैव डायरेक्टली अप्रोच टू आवर ब्रांच मैनेजर, लेकिन हम जब ब्रांच मैनेजर करके ज्वाइन होते हैं तो वी आर द लास्ट पर्सन कि जब कोई भी ब्रांच में प्रॉब्लम आएगा तो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट, वेदर यू सॉल्व इट ऑन योर ओन और यू गेट इट सॉल्व फ्रॉम जोनल ऑफिस और कॉन्टेक्टिंग एनी पर्सन. तो दिस विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच मैनेजर, और उसके बेनिफिट्स जो कुछ है वो ब्रांच मैनेजर को मिलेंगे. जो कुछ गलतियां होगी दैट आल्सो विल हैव टू बी फेस्ड बाय हिम यू ओनली. तो इसलिए ये जरूरी है. तो पहले मेंटल प्रिपरेशन में क्या है, सबसे पहला जो मुझे लगता है, आई हैव 5 years ऑफ ब्रांच मैनेजरशिप एक्सपीरियंस इन रूरल एरिया पर्टिकुलरली. तो अगर हम अपना ईगो साइड में रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अभी आप बॉस बन गए, यू आर अ ब्रांच मैनेजर, यू आर हेड ऑफ दैट ब्रांच, but why you are head of that branch? Because only that you have opted to be an officer, and now also you have got promotion from scale 1 2 3 or maybe 4 5, and now you have been posted as a branch manager. But those who have not been posted or those who have not taken promotion, it doesn't mean that they don't have any knowledge. तो ये जो है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन आपके साथ जो काम करने वाले सारे लोग हैं, एवरीबॉडी हैज नॉलेज एंड एवरीबॉडी हैज हिज ओन एक्सपीरियंस. तो एक बार आप ब्रांच मैनेजर करके बनते हो ना, तो आपने आपका ईगो साइड में रख के सबके साथ मिलके काम करना चाहिए, और सब में हर एक में जो जो अच्छे क्वालिटीज है उसको लेके आपको आगे जाना है. मीन्स हर एक में जो अच्छे क्वालिटी है उसको आप ये करो, प्रेज करो, और उसके पास से वो काम करवा के ले लो. कोई एकदम काउंटर में अच्छा नहीं रहेगा लेकिन ही मे बी गुड फॉर रिकवरी. कोई ब्रांच में थोड़ा तकलीफ देगा लेकिन वो उसको आप बाहर भेज दोगे रिकवरी के लिए, तो वो रिकवरी करके लाएगा और ब्रांच में जो तकलीफ हो रही है वो भी आपकी कम हो जाएगी. दैट आर सम ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईगो का मतलब क्या है कि हम ब्रांच मैनेजर बन गए तो हम केबिन में दिन भर बैठे रहेंगे, हर एक आदमी मेरे पास आना चाहिए, उसने बताना चाहिए, ऐसे नहीं होता है. एक 2-3 बार आपने बाहर ब्रांच से बाहर जाके, केबिन से बाहर जाके आपने सब अपने जो क्लरिकल है, सब स्टाफ है, स्वीपर है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में या कुछ डेली वर्किंग ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी आपने देखना चाहिए. इससे दो चीजें होती है. एक तो
लोगों को अच्छा लगता है कि चलो मैनेजर सर बाहर आके हमें मिल रहे हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि एक उनके मन में डर भी रहता है कि अरे मैनेजर सर कब भी आएंगे बाहर देखने के लिए, तो वो फिर अटेंटिव रहेंगे, ऑल द वाइल वो दे विल बी इन वर्क ओनली। नहीं तो ये जो टाइम पर एक बार उनको पता चल गया कि अरे मैनेजर एक बार केबिन में आए तो बाहर नहीं आते, तो देन वो एकदम लेजरली इसमें काम करते हैं। तो थोड़ा प्रेशर बिल्टअप करने के लिए भी ये जरूरी है, और लोगों में मिक्सअप होने के लिए भी जरूरी है ऐसा। तो इसलिए ये जो है मेनली कि ईगो जो है वो जीरो करना आपका बहुत बहुत जरूरी है। जीरो तो बहुत डिफिकल्ट होता है जीरो ईगो करना, लेकिन फिर भी नियर टू जीरो आपका ये होना चाहिए। कभी कभी तो आपको दिखाना ही पड़ता है कि चलो मैं बॉस हूँ करके, कभी कभी दिखाना पड़ता है, बट इट इज नॉट ऑल द वाइल इन योर माइंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज डीलिंग विद zonal office and zonal office executives or executives from HO। तो इसमें क्या है कि आपका एज अ ब्रांच मैनेजर यू शुड हैव ए वेरी गुड लाइजन विद जोनल ऑफिस ऑफिशियल्स। पर्टिकुलरली आप ब्रांच मैनेजर करके ज्वाइन हो गए तो विद इन 1 वीक, एटलीस्ट विद इन 1 वीक आप जोनल ऑफिस में जाके मिलो सबको। एक बार मिलके सबके साथ इंट्रोडक्शन करके ले लो कि आई हैव जॉइंड दिस ब्रांच एंड आई विल एक्सपेक्ट, मैं मेरी तरफ से आपको कोऑपरेशन रहेगा, कुछ भी आप डिमांड करेंगे तो एंड आई विल आल्सो। तो ये एक अच्छा सिग्नल दे देता है, जोनल ऑफिस को भी अच्छा सिग्नल देता है, एंड आपको खुद को भी एक कंफर्ट लेवल आएगा कि हर एक जो जोनल ऑफिस में काम करने वाला ऑफिसर है आपका, उसकी आपके साथ पर्सनली ये भी हो जाती है, पहचान भी हो जाती है, तो एक थोड़ा कंफर्ट लेवल आपका बढ़ता है। देन एग्जीक्यूटिव के साथ भी वही रहता है कि एग्जीक्यूटिव को एक बार आप खुद मिलके आते हो तो वो भी थोड़ा डायरेक्ट डायलॉग हो जाता है। डायरेक्ट डायलॉग में फिर आप अपना जो कुछ कंसर्न है या आप कुछ उनके पास से गाइडेंस चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। And all the while dealing with the zonal office executive, you should be always polite। आपके आपकी तरफ से इमीडिएटली काम नहीं भी होने वाला है तो यू कैन टेल इट पोलाइटली कि मैं आज नहीं करूंगा लेकिन कल पक्का करूंगा। इस तरह से आपका ये होना चाहिए। तो देयर शुड बी ऑलवेज, कहने का मतलब एक ही है कि लाइजन आपका पक्का होना चाहिए कि जोनल ऑफिस से फोन कॉल आ रहे हैं लेकिन यू आर नॉट कॉन्टेक्टिंग दोस पीपल और यू आर नॉट लिफ्टिंग द फोन, या आपके ब्रांच से कोई ऑफिसर फोन नहीं उठा रहा है, दिस शुड नॉट बी द केस। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है फियर ऑफ मैनेजरशिप। ये तो रहती है हर एक इसमें, फियर ऑफ मैनेजरशिप रहती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हम मैनेजरशिप करते हैं तो एक मन में ये रहता है कि अरे अभी जो कुछ होगा वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपडेटिंग योर नॉलेज। फियर क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फियर होता है। नॉलेज है तो जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना फियर कम हो जाएगा। जैसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो है कि नॉलेज बढ़ेगा तो आपकी फियर कम हो जाएगी। इसलिए मेरा एक सजेशन है जो प्रैक्टिकल मैंने थोड़ा लेट मेरे करियर में ये किया था कि आप हर एक दिन यूएलसी में जो सर्कुलर अपलोड होते हैं तो बिफोर यू लीव द ब्रांच आप यू गो थ्रू द, आप यूएलसी का ओएनएम सर्कुलर खोलो, लेटेस्ट सर्कुलर आप देखो। लेटेस्ट सर्कुलर में से जो सिंगल पेज सर्कुलर रहते हैं इमीडिएटली पढ़ने वाला होते हैं वो इमीडिएटली पढ़ के ले लो। एंड देन जो बड़े सर्कुलर जैसे लैंडिंग पॉलिसी है या लैंडिंग पावर्स है वो अपने डेस्कटॉप पे अपने डी कॉलम पे सेव करके रखो, और जैसे टाइम मिलेगा जितने जल्दी, क्योंकि वो टाइम भी गवाना नहीं है। जैसे हम अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं ना तो हर एक सर्कुलर रिपीट होते रहता है, तो हर बार आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन लैंडिंग पॉलिसी है या लैंडिंग पावर्स है या फिर रिस्क मैनेजमेंट का कोई सर्कुलर है या कोलैटरल का सर्कुलर, तो एक बार तो जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो हमने पहले वीडियो में बताए दैट यू कैन रिफर टू दैट, जो वो जो 5-6 पॉलिसीज है ना वो पॉलिसीज एक बार तो आपने पढ़नी चाहिए। एंड देन अगर आप हर बार ये आदत डालते हो हर रोज सर्कुलर पढ़ने की, तो फिर आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ओरिजिनल सर्कुलर का सब्जेक्ट मालूम रहता है और उसमें क्या चेंज है वो इमीडिएटली आप पकड़ लेते हो। लेकिन दिस शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि हमने एकदम एक बार मुझे काम आया फिर मैंने सर्कुलर निकाला फिर वो हैजार्ड में कुछ ध्यान में भी नहीं आता। पर्टिकुलरली हमने देखा है कि अभी देखो एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग का सर्कुलर, लोग रिस्ट्रक्चरिंग तो करते हैं लेकिन वो सामने सर्कुलर नहीं रखते या फिर सर्कुलर पढ़ा ही हुआ नहीं रहता, तो फिर गलतियां होती है ना कि क्या करना है। मीन सिंपल होता है कि एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग में आप डब्ल्यूसीटीएल ओपन करो, एफआईटीएल ओपन करो, ये तो इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग में डब्ल्यूसीटीएल एफआईटीएल ओपन करना ही है। लेकिन ये गलती क्यों होती है? क्योंकि सर्कुलर पढ़ा नहीं रहता, दैट इज द ओनली थिंग। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज रिगार्डिंग मेंटल प्रिपरेशन। राहुल जी, एनीथिंग you can add? No, sir, that's it. Okay, na? So now next thing is that
नाउ जब हम एक्चुअल ज्वाइन करेंगे ब्रांच में, तो जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसके बाद इमीडिएटली विदिन 10 डेज 15 डेज क्या हमने काम करना चाहिए। तो एक तो है वी शुड गो थ्रू द लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच एंड लेटेस्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आपको उसमें से जो मेजर इरेगुलरिटीज है, जो बड़े अकाउंट रहते हैं, समझो एज पर द ब्रांच कैटेगराइजेशन, स्केल 1 की ब्रांच है, 2 की ब्रांच है, 3 की ब्रांच है, तो उस हिसाब से वहाँ बड़े बड़े अकाउंट्स रहेंगे। तो जो बड़े अकाउंट्स में जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें कुछ इंस्पेक्टर ने मेजर इरेगुलरिटीज निकाली है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्लोज भी हुआ है, तो भी आपको वो एक बार फोल्डर देख के 5-6 फोल्डर तो आपने वो इम्पोर्टेंट है वो देखने चाहिए, और उसमें क्या मेजर इरेगुलरिटीज है। अगर इफ योर ब्रांच इज अ बिग ब्रांच विद सीएम एंड एजीएम, यू कैन डिस्कस दोस थिंग्स विद योर नेक्स्ट ऑफिसर एंड उसके पास से आप कंफर्म करके, बिकॉज नॉर्मली ऐसे होता है कि आप उधर नहीं हो लेकिन पहले वाला ऑफिसर जो सेकंड मैन है वो पहले से वहां है, तो फिर you can discuss with him and you get yourself acquainted with the major irregularities persisting in the loan portfolio, particularly in the loan portfolio. And regarding deposit portfolio normally कुछ ये नहीं रहता, लेकिन उसमें डिपॉजिट सेक्शन में कंप्लेंट्स का मेन है कि ब्रांच में कंप्लेंट्स क्या है, कंप्लेंट रजिस्टर देखो, लेटेस्ट कंप्लेंट्स है या कोई मेजर कंप्लेंट पेंडिंग है क्या, नॉर्मली कंप्लेंट्स करने वाले कंप्लेंट प्रोन कस्टमर्स कौन है, वो आप एक बार नाम पढ़ के भी लेते हो ना, तो आपके पास पहले 1 महीने में कोई तो जो कंप्लेंट करने वाला है पक्का आएगा, क्योंकि वो ऐसे सर्च में ही रहता है कि अभी चला नया मैनेजर आया है उसको पकड़ेंगे, पहले वाले ने सॉल्व नहीं किया अभी इसके पास जाके देखता हूँ। तो इसलिए ये वी शुड, अगर पहले से हमें मालूम होता है तो वी ऑलवेज गेट प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ कि चलो मुझे ये मालूम है ऐसे आदमी आने की संभावना है, और पहले से उसका क्या नेचर का कंप्लेंट आता है मालूम होता है, तो इट बिकम्स इजियर टू फेस इट। अब्रप्टली अगर आता है वो तो इससे ज्यादा। दूसरी बात और एक है कि ब्रांच प्रोफाइल। ब्रांच प्रोफाइल में क्या है, जो यूएलसी में जो ब्रांच प्रोफाइल आता है, तो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग डेट है उस दिन का ब्रांच प्रोफाइल करके वो आपके पास परमानेंटली होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जिस दिन आए थे डिपॉजिट लेवल क्या था, एडवांस लेवल क्या था, कासा मिक्स क्या था, ये सब आपको मिलता है, और वो बैकडेटेड मिलता नहीं है ब्रांच प्रोफाइल में, इसलिए उसका प्रिंट आउट लेके रखना जरूरी है। एंड एनपीए लेवल आपका क्या है, देन स्टाफ स्ट्रेंथ आपकी उस दिन की क्या है, बाद में तो स्टाफ स्ट्रेंथ मास्टर पे मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके पास एट एकदम एक स्पेस एक झटके में आपको सब कुछ ये मिल जाता है। एंड उसमें क्या रहता है कि आपका परफॉर्मेंस का परसेंटेज भी रहता है, मार्च समझो अभी 21 है तो मार्च 20 का क्या था, मार्च 19 का क्या था, एंड अभी क्या है, तो 3 साल का उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो दिस आल्सो विल गिव यू कि हमें क्या कितना इस ब्रांच का ट्रेंड क्या है, ये भी एकदम एट सोर्स आपको पता चलता है। तो इसलिए वो ब्रांच प्रोफाइल आपके पास जो जिस दिन ज्वाइन करोगे। और दूसरी बात है कि दिस शुड बी अ प्रैक्टिस कि आप रोज के रोज ब्रांच प्रोफाइल, अभी आजकल तो मुझे लगता है ब्रांच मैनेजर के मोबाइल पे रोज मैसेज भी आता है कि आपका डिपॉजिट कितना है क्या है, ये सब डेली बेस, लेकिन वो तो आता है और वो डिलीट हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार ब्रांच प्रोफाइल देखने की आदत होनी चाहिए कि एक बार फिर रोज का ही वो अगर आदत रख गई ना, तो एक बार ब्रांच प्रोफाइल खोल के देखो क्या मेजर चेंजेस है, वहां आपको पता चलता है यार एकदम डिपॉजिट इतना कैसे बढ़ गया। फिर यू कैन आस्क द डिपॉजिट ऑफिसर इन डिपॉजिट सेक्शन, और एडवांसेस में अगर कोई सीसी में अगर एकदम किसी ने उठा लिया तो वो भी आपको पता चलता है। तो ये हो गया ब्रांच प्रोफाइल का। एंड देन यू शुड गो थ्रू द नेम्स ऑफ टॉप 10 डिपॉजिटर्स एंड टॉप 10 बोरोवर्स। तो ये क्यों जरूरी है, तो टॉप 10 डिपॉजिट एक बार ये क्रक्स होता है किसी भी ब्रांच में, टॉप 10 डिपॉजिटर्स एंड टॉप 10 बोरोवर्स के साथ आप एक बार इंटरेक्शन करते हो, चाहे तो पहले महीने में या 2 महीने में उनकी सारे टॉप 10 बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स की एक मीट बुला लेते हो, तो इट विल हेल्प यू फॉर बिजनेस डेवलपमेंट पर्टिकुलरली। अल्टरनेटिवली यू कैन एक्चुअली गो एंड विजिट। रूरल में ये पॉसिबल है कि आप टॉप 10 डिपॉजिटर्स को डायरेक्ट जाके मिलो, इट इज वेरी इजी। सिटी में इतना पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन रूरल में इट इज वेरी इजी। तो हमारे तो ब्रांचेस है तो मैक्सिमम रूरल में ही ज्यादा है। और सिटीज में क्या होता है, सिटीज में इवन आप एक फोन कॉल करके भी उनको ये बोलते हो कि आई हैव जॉइंड दिस ब्रांच एंड आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर बिजनेस फ्रॉम यू एंड आई अश्योर यू बेस्ट पॉसिबल सर्विस, इतना एक कॉल भी आपके पास से गया ना, तो इट गिव्स यू वेरी गुड सिग्नल इन द मार्केट। तो ये एक कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस है। अभी इसमें और एक है कि आजकल चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर होता नहीं। पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में भी 1980s या 90s में 90s तक कि ब्रांच मैनेजर पहले ऑर्डर आते थे, फिर दूसरा इनकम बंडल जो है वो पहले ज्वाइन करता था, और उसके बाद 7 दिन चार्ज हैंड ओवर टेकिंग ओवर का
काम चलता था, और उसके बाद वो उसका फॉर्मेट रहता था, और उसके बाद वो रिलीव होता था जो अर्लियर ब्रांच मैनेजर था। तो अभी तो ये नहीं है, अभी पहले ही वो मैनेजर भी चला रहता है, मे बी सेकंड मैन भी चला रह गया, एक ब्रांच में 2-2 3-3 भी ट्रांसफर हो जाते हैं आजकल। तो आप जब जाओगे तो जो हमने ये लेटेस्ट इंस्पेक्शन, स्टैट्यूटरी ऑडिट, या आप ओवरऑल ब्रांच में और भी कुछ प्रॉब्लम है स्टाफ के साथ डिस्कस करके, यू शुड लिस्ट आउट दोस प्रॉब्लम्स and you prepare one letter and send it to zonal manager कि I have joined today, I joined this branch on this and this date, and I have observed that following serious issues have been observed in the branch before at the on the day I joined। तो क्या हो जाएगा कि एक तो आपने जो प्रॉब्लम है वो एस्केलेट कर दिए जोनल ऑफिस के, और उस राइटिंग में एक बार हो गया तो उसके बारे में बाद में कुछ होता है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाओगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल है क्योंकि आजकल चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये प्रॉब्लम जॉट डाउन करो एंड जोनल ऑफिस को इन्फॉर्म करो। यस, बोलिए। नहीं सर, वो जो चार्ज हैंड ओवर रिपोर्ट के बारे में बताया ना आपने अभी, टू माय नॉलेज देयर वाज अ सर्कुलर फ्यू मंथ्स बैक which says that it is mandatory to punch the charge takeover or handover report. So इसका हाँ, इन केस अगर वो आउटगोइंग जो मैनेजर है, इन केस कुछ रीजन से if he is not able to complete with the process of charge handover report, तो जैसा आपने बताया हम वैसा कर सकते हैं। यस यस यस, बट ये करना जरूरी है। हाँ देखो अभी क्या होता है ना कि ये आप बोलते हो सही है, सर्कुलर में दिया गया है, लेकिन आपका रिलीविंग कब होता है? 5 बजे फोन आता है, 6 बजे आपको रिलीव होना है। whether it is possible to put it in ULC and whether anybody will put it, I don't think anybody will do it। प्रैक्टिकल है ये कि नहीं करेगा कोई। आई नो इट, इतने साल से एक्सपीरियंस के बाद मुझे मालूम है कि कोई नहीं बताएगा, और खुद हो के मेरे यहाँ क्या प्रॉब्लम बचे हुए कौन बताएगा? यू हैव टू फाइंड इट आउट। देन नेक्स्ट इज एनपीएस, पोजीशन ऑफ एनपीएस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली आपको एक तो ब्रांच के टोटल एनपीएस की पोजीशन होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो सेकंड है कि आपके यहाँ रेगुलरली स्ट्रेस में आने वाले अकाउंट्स जो 0 SMA 0, 1, 2 ये जो स्ट्रेस में आने वाले हैं, एंड रिपोर्ट्स 7 फाइनेंशियल, 6 7 फाइनेंशियल एंड 7 नॉन फाइनेंशियल। तो आई विल गो थ्रू शॉर्टली रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट्स, लेकिन ये जो है, ये जो सारे रिपोर्ट्स है ना, आपने दिन में एक बार ओपन करके देखना ही चाहिए। इट इज कंपल्सरी फॉर ब्रांच मैनेजर कि आपको ये मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम अभी क्या होता है ना कि जोनल ऑफिस से भी कॉल आते हैं, तो मोस्टली ऑलवेज फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन विल बी ब्रांच मैनेजर। एजीएम ब्रांच छोड़ दो, एजीएम ब्रांच में नॉर्मली सेकंड ऑफिसर रहता है, लेकिन फॉर ऑल अदर ब्रांचेस इंक्लूडिंग सीएम, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन ओनली विल बी ब्रांच मैनेजर। इसलिए आपको जो एनपीए रिपोर्ट है उसमें क्या क्या देखना चाहिए? तो SMA 0, 1, 2 रिपोर्ट। व्हाट इज SMA 0? आई विल रिपीट अगेन कि SMA 0 क्या है। तो अप टू 30 डेज जो ओवरड्यू है, दैट इज SMA 0। व्हाट इज SMA 1? फ्रॉम 31 डेज टू 60 डेज, इट इज SMA 1, एंड फ्रॉम 61 डेज टू 90 डेज, इट इज SMA 2। 91 डे के दिन अभी डेली स्टैंपिंग शुरू हो गया है, तो जैसे ही 91 डे आता है अकाउंट स्टैंप हो जाता है। तो वो कहाँ आता है? तो वहां वो 6 नंबर रिपोर्ट में है, 6 नंबर रिपोर्ट। तो 6 नंबर रिपोर्ट में वो आएगा। तो आज की डेट में जो 6 नंबर रिपोर्ट जनरेट होता है उसमें 1 अप्रैल 2021 के बाद जितने अकाउंट स्टैंप हो चुके हैं वो सारे 6 नंबर रिपोर्ट में आते हैं। एंड जो 10 नंबर एनपीए का रिपोर्ट है उसमें लास्ट ईयर के सारे अकाउंट है, ऑल अकाउंट मीन लास्ट ईयर के, और ये 6 नंबर में ये सारे उसमें आते हैं। मीन्स 10 नंबर इज एंटायर एनपीएस, टोटल एनपीएस एज ऑन डेट, एंड 6 नंबर है इसमें आते हैं 1 अप्रैल 21 के बाद वाले सारे। देन 7 फाइनेंशियल। 7 फाइनेंशियल क्या है? तो समझो आज 11 तारीख, तो 11 तारीख अगर आज है तो मीन्स जुलाई मंथ शुरू है, तो 31 जुलाई तक जितने अकाउंट एनपीए होने वाले हैं उतने सारे 7 फाइनेंशियल में आते हैं। इट विल गिव कि इस महीने में मीन्स SMA पर्टिकुलरली SMA 02 में 2 के अकाउंट हो गए सारे। 01 के पहले आते थे, लेकिन अभी उसमें सिर्फ SMA 2 के रिपोर्ट आएंगे, और जो इस महीने के एंड में मीन्स 31 जुलाई या फिर अगस्त का है तो 31 अगस्त के जितने एनपीए होने वाले वो सारे 7 फाइनेंशियल में आएंगे। यस, बोलिए। एक बार फिर से 7F रिपीट कर दीजिए। हाँ, 7F क्या है? तो 7F में अभी आज जिस मंथ में आप हो
तो उस मंथ के एंड तक जितने एनपीए होने वाले हैं वो सारे अकाउंट 7F में आते हैं। दिस इज द न्यू थिंग। पहले क्वार्टरली था तो उस वक्त क्या रहता था कि 90 डेज में एनपीए होते हैं वो आते थे, लेकिन मंथली जैसे एनपीए शुरू हो गया तो मंथ एंड का, लेकिन डेली एनपीए होने के बाद भी वही क्राइटेरिया रखा है कि इस महीने में जितने अकाउंट एनपीए होंगे 7F में होने वाले वो सारे 7F में दिखेंगे। ठीक है। 7 नॉन फाइनेंशियल में क्या है, थोड़ा अलग है। 7 नॉन फाइनेंशियल में इफ यू आर, आज 11 तारीख है तो 11 तारीख को आप अगर 7 नॉन फाइनेंशियल देख रहे हो तो नेक्स्ट 11 मींस नेक्स्ट 30 डेज में मींस अगले महीने के 10 तारीख तक जितने अकाउंट नाम है वो 30 दिन का उसका क्राइटेरिया है कि 30 दिन में जितने अकाउंट एनपीए हो सकते हैं वो 7 नॉन फाइनेंशियल में आते हैं। मींस दिस 11th जुलाई टू 10th अगस्त, तो ये सारे 7 नॉन फाइनेंशियल में आते हैं। तो दिस इज, ये सारे रिपोर्ट ना यू शुड गो थ्रू, और अगर कुछ समझता नहीं है तो आप पढ़ के ले लो, या फिर कोई क्रेडिट मॉनिटरिंग वाला जो इसका बंदा है उसके पास से मालूम करके ले लो हाउ वी शुड अप्रोच रिकवरी प्रोसेस एंड ऑल दैट। And the non-financial वाले जो accounts है, this would become NPA only because of non-financial reasons. हाँ, नॉन फाइनेंशियल मीन स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है या रिविजन नहीं है, ये जो सारे रीजंस रहते हैं इसके कारण जो है वो दैट इज 7 नॉन फाइनेंशियल। ठीक है। 7F इज फॉर फाइनेंस, F मींस फाइनेंशियल, NF मींस नॉन फाइनेंशियल, दैट इज सिंपल। ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अब जब आप ब्रांच में जाते हो तो समझो कोई विलेज है, रूरल का विलेज है, ये सिटी का ब्रांच है, दो सिचुएशन है। तो रूरल में जब आप जाते हो तो रूरल में क्या है, सर्विस एरिया अप्रोच रहता है नॉर्मली। तो कोई भी विलेज में आपको जो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन डिफाइंड रहता है कि उतने ही विलेज आपके ब्रांच के अंडर है और उसी में आपको फाइनेंस करना है। तो इसलिए वो एरिया ऑफ ऑपरेशन आपके इसमें कितने है, 12 है, 10 है, उसमें से कौन से विलेजेस में आपको, विलेजेस में से आपके पास ज्यादा बिजनेस है, कौन से विलेजेस में अभी तक कुछ एफर्ट्स नहीं हुए हैं, ये थोड़ी आप, एंड दैट इन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन हैव फ्रॉम द लीड बैंक बुकलेट। लीड बैंक का बुकलेट हर साल बनता है जिसमें मार्च एंड की पोजीशन रहती है कि मार्च तक आपके ब्रांच से कितने कौन से विलेज में कितना फाइनेंस हुआ है, ब्रांच वाइज एंड बैंक वाइज ये रहता है। मींस अभी समझो आपके पूरे तालुका में 10 नेशनलाइज बैंक है, 10, तो सारे का उसमें सारे बैंक्स का उसमें विलेज वाइज डेटा रहता है। तो यू कैन टेक आउट योर डेटा और आप यू कैन कंपेयर विद अदर बैंक्स। अगर अदर बैंक्स को बिजनेस मिल सकता है किसी विलेज से लेकिन हमारे यहाँ नहीं है तो वी कैन कंसंट्रेट ऑन दैट विलेज। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो इट बिकम्स वेरी इजी। नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ बिजनेस ज्यादा होता है वहां के बोरोवर ब्रांच के पास अप्रोच होते हैं, लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है वहां ब्रांच शुड अप्रोच दैट विलेज कि अपने आपके यहाँ से बिजनेस पोटेंशियल है लेकिन वहां से बिजनेस नहीं आ रहा है, तो इट बिकम्स इजियर, आपको थोड़ा गाइडलाइन मिलता है। तो इसलिए ये एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांच। दूसरी बात है सिटी में, हाँ सिटी का ही पूछा। हाँ यस, दूसरी बात है सिटी में। तो सिटीज में क्या है, सिटीज में एरिया ऑफ ऑपरेशन ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। मींस अभी आपका समझो बिबेवाड़ी ब्रांच है पुणे में, तो पुणे में बिबेवाड़ी ब्रांच का कोई कस्टमर, कोई करवे नगर का कस्टमर आपके पास आ गया तो भी आपको वो अकाउंट ओपन करके लेना चाहिए, कोई पानेर का भी आ गया तो भी आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। सिर्फ सिटी में काम करते वक्त कुछ स्पेसिफिक सर्कुलर रहते हैं जहां आपको बाउंड्रीज डिफाइन किए हुए रहते हैं कि अभी जो एलएपी का जो लेटेस्ट सर्कुलर है, तो एलएपी के सर्कुलर में ये डिफाइन किया गया है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप सैंक्शन करोगे तो you should that property should be situated within 25 kilometers radius from your branch। ये डिफाइन किया गया है। समझो आपने एलएपी दिया और अगर वो फिर बाद में गलत हो गया, एनपी हो गया और स्टाफ अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है तो ये जरूर देखा जाएगा कि ये 25 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जाए था। इसलिए ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। उसमें भी मे बी डेविएशन रहेगा कि फॉर रियली अच्छा है तो यू शुड टेक द डेविएशन फ्रॉम जोनल ऑफिस इफ इट इज अलाउड इन द स्कीम। तो ये हर एक बार वो, तो ये क्या होता है ना कि हर एक स्कीम ऑलवेज चेंज होता रहता है ना। तो आज की डेट में ये है कि 25 किलोमीटर रेडियस, बाद में वो अगर ज्यादा कुछ होने लगा फ्रॉड तो वो 10 किलोमीटर भी करेंगे, या फिर बिजनेस बढ़ाना है तो फिर 100 किलोमीटर भी करेंगे, यू नेवर नो। लेकिन आज की डेट में ये है कि 25 किलोमीटर का रेडियस है। तो दिस इज रिगार्डिंग एरिया ऑफ ऑपरेशंस। राहुल जी और कुछ नहीं ना? नहीं सर। ओके ना। देन डिस्कशंस विद स्टाफ।
अभी ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, हम मे बी वी गो एज अ ब्रांच मैनेजर और एज अ ऑफिसर, और कैसे भी हम कोई भी ब्रांच में जाते हैं ना, पर्टिकुलरली ऑफिसर एंड ब्रांच मैनेजर को ये एप्लीकेबल होता है कि यू आर देयर इन द ब्रांच मे बी फॉर 2 years 3 years मैक्सिमम 4 years। इससे ज्यादा नॉर्मली कोई ब्रांच में एक्सेप्शनल केसेस में रहता है, अदरवाइज कोई नहीं रहता है इससे ज्यादा किसी भी ब्रांच में। तो जितना आप कोऑर्डिनेट रिलेशन स्टाफ के साथ रखोगे वो अच्छा है। जाने के बाद स्टाफ के पास से पहले तो एक सबके साथ डिस्कस करके आप ये करो कि किसी के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है क्या, मीन्स कोई किसी को कोई ब्रांच में कभी कभी क्या होता है कि रूरल ब्रांचेस में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो इन्वर्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल कि मेरे यहाँ मैं जब ब्रांच मैनेजर करके ज्वाइन हुआ तो देयर वाज अ प्रॉब्लम सिंस लास्ट 1 or 2 years की वहाँ इन्वर्टर नहीं था। तो वो मैनेजर ने, वो कैशियर ने मुझे इमीडिएटली बताया कि सर इधर इन्वर्टर नहीं है, और अगर बिजली चली जाती है तो गैस बत्ती लगा के हम काम करते हैं, पसीना हो जाता है। तो मैंने इमीडिएटली फर्स्ट क्या किया कि आई कॉल्ड डायरेक्टली टू माय चीफ मैनेजर एट जोनल ऑफिस, एंड उनको फोन पे ही मैंने परमिशन ले लिया, और दूसरे दिन इन्वर्टर बिठा दिया। तो पहले 1 महीने में उसका ये काम हो गया, तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज इट वेंट वेरी स्मूथ टिल आई लेफ्ट दैट ब्रांच। तो ये होता है कि एक बार आप जल्दी से लोगों का काम करते हो ना, तो एक उनको भी एक तसल्ली मिल जाता है कि चलो यहाँ हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ काम होगा। एंड दूसरी बात है कि सबके साथ मिलके अगर घुल मिल के रहते हैं तो फिर अच्छा होता है। दूसरी बात है जॉब रोटेशन, ऑफिस ऑर्डर निकालना जरूरी है, ब्रांच में डिफाइन वर्क डिफाइन करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ जॉब रोटेशन भी जरूरी है। और मैं जैसे है कि ऑफिस ऑर्डर निकाला भी तो नॉर्मली ऑफिस ऑर्डर के नीचे एक लाइन रहता है कि एक्सीजेंसी, दिस इज द ऑफिस ऑर्डर इन जनरल, एंड जो ये लाइन आप एज अ ब्रांच मैनेजर ये लाइन डालना भूलना नहीं है कभी, दैट लाइन शुड बी देयर कि एनी स्टाफ मेंबर कैन बी गिवन एनी वर्क इन केस ऑफ एक्सीजेंसी। तो ये एक्सीजेंसी वर्ड सारा काम कवर कर देता है, नोबडी कैन कंप्लेन कि मुझे ये काम क्यों बताइए, आप उसको ये लाइन निकालो बस ऐसा। तो ये ऑफिस ऑर्डर एंड जॉब रोटेशन नॉर्मली सर्कुलर बोलता है कि 6 महीने में जॉब रोटेशन करो, लेकिन आजकल इतना स्टाफ भी नहीं रहता है ब्रांचेस में, और फिर 1 साल में भी आपने जॉब रोटेशन किया, 2 क्लर्क है आपके, तो इट इज ऑलवेज गुड कि दो स्टाफ है तो 1 साल में आप स्टाफ रोटेशन करो, जॉब रोटेशन करो उसका। देन टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो ब्रांच के रहते हैं, जैसे मैंने अभी ये इसका बताया, वैसे ही कंप्यूटर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहते हैं जिसमें क्लरिकल स्टाफ को इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ आरआईटीसी जितना जल्दी हो सके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि वो बोलेंगे कि हम मैनेजर को बोलते हैं, ऑफिसर को बोलते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होता है तो हम कैसे काम करेंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। जहां जहां प्रॉब्लम्स है ना वहाँ वो आपने वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, क्योंकि उसमें तो क्लरिकल कुछ कर नहीं सकता, कोई कोई कुछ क्लरिकल प्रोएक्टिव होते हैं वो खुद फोन करेंगे खुद आरआईटीसी के पास, लेकिन सब नहीं होते। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि वो क्रेडिट ऑफिसर के ऊपर या मैनेजर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे, अदरवाइज बेटर। देन क्लियर मैसेज रिगार्डिंग वर्क, जैसे हम एक तरफ बोलते हैं कि अच्छा सब हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि यू हैव टू बी हार्श एट टाइम्स, लेकिन वो बार बार नहीं होना चाहिए। आपका जो बॉस है, वो जो अंदर का बॉस है, वो हर बार नहीं दिखना चाहिए, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखना ही चाहिए। थोड़ा सिग्नल भी जाना चाहिए कि नहीं यहाँ कुछ भी बोलो नहीं चलता। थोड़ा मीन्स हम क्या बोलते हैं उसको कि पंक्चुअलिटी के बारे में, टाइम पे आने के बारे में, टाइम पे आने के बारे में तो मैं तो बोलता हूँ कि जिस दिन आप ब्रांच में जाओगे एक तो आप खुद टाइम पे आना चाहिए। आपको विजिट भी जाना है तो यू फर्स्ट कम 15 मिनट, जो बैंक का रूल है कि 15 मिनट पहले ऑफिस में आओ, एंड दिस गिव सिग्नल टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स की, और किसी को भी लेट जो रेगुलरली लेट आने वाला है उसको क्लियर कट बोलो कि 3 दिन आपका रेगुलरली लेट है तो 3 दिन अगर लेट होते हैं तो एक कैजुअल जाएगा आपका, ये क्लियर कट मैसेज भी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पंक्चुअलिटी है ना, ये कंप्लेंट वाला सबसे बड़ा मैटर रहता है ब्रांचेस में। क्योंकि लोग एक तो आते हैं 10 बजे के बाद, 10 बजे का ब्रांच है तो 10 बजे के बाद आते हैं, उसके बाद उसका गपशप इधर उधर जाएंगे, पानी पिएंगे, पाउडर लगाएंगे, ये सब चलता है, और उसके बाद 10:30 बजे काम शुरू होता है। तो ये नहीं चलना चाहिए, दिस शुड नॉट बी द केस, किसी भी हालत में ये नहीं चलना चाहिए। तो वहां आपको एकदम क्लियर मैसेज देना चाहिए कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, वहां आपको एकदम सख्त होना चाहिए। देन नेक्स्ट है गाइडिंग द स्टाफ, पर्टिकुलरली
किसी भी प्रॉब्लम्स में आपके पास पहले हम जैसे बोला कि अपडेटिंग द नॉलेज, मैनेजर का क्या है, मैनेजर का रोल है काम करके लेना। तो काम करके लेने के लिए आपके पास खुद के पास नॉलेज चाहिए। तो इसलिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम झुक के ये करके काम करने की जरूरत नहीं है आपको खुद को, लेकिन थोड़ा स्मार्ट रहना चाहिए। आपके पास नॉलेज है तो आप लोगों को ये करो, काम करने के लिए इनकरेज करो। और कभी प्रॉब्लम आता है तो यू शुड बी एबल टू टेल देम कि ये कैसा है। आपके पास सभी का नॉलेज नहीं रहेगा लेकिन आपके पास सोर्सेस होने चाहिए कि कहाँ से ये नॉलेज मिल सकता है। इसलिए ये है कि जोनल ऑफिस में ऑलवेज समझो 15 लोग जोनल ऑफिस में है तो उसमें से 2-3 लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास सारे इसका सॉल्यूशन रहता है। तो यू शुड हैव नंबर्स एंड वेरी गुड रिलेशंस विद दोस पीपल। देन आपके आजू बाजू के जो ब्रांचेस है उसमें ऐसे 2-3 मैनेजर जो अच्छा काम करते हैं जोन में, वो आपको मालूम होनी चाहिए, उनके साथ आपके अच्छा रैपो होना चाहिए। दोस पीपल ऑल्सो विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड अल्टरनेटिवली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर स्टाफ। तो इस तरह से ये जाना चाहिए कि आपको ये कि मैं इसको किस लिए पूछूं, उसको किस लिए पूछूं। या कभी कभी क्या होता है कि कोई ब्रांच में प्रॉब्लम रहता है तो आपके जो क्लरिकल स्टाफ है या इवन सब स्टाफ स्वीपर, इनके पास भी बहुत सारा नॉलेज रहता है। अगर आपको कोई कस्टमर का ये मालूम तो पर्टिकुलरली सब स्टाफ एंड स्वीपर आर देयर फॉर मेनी इयर्स, तो उनको उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके आप पूछते हो तो फिर वो भी आपको फीडबैक देंगे। तो इस तरह से ये गिव एंड टेक है कि आप थोड़ा उनके पास अच्छी तरह से बिहेव करोगे तो फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल ऑलवेज देता हूँ कि कोई स्टाफ नोटोरियस है ब्रांच में, तो आप उसको पर्टिकुलरली रूरल में ये पॉसिबल होता है कि आप उसको ऐसे B2G2 का काम दे दो, रिकवरी का काम दे दो, जो वो बाहर का काम खुशी से करेगा। आपका B2G2 का प्रॉब्लम सॉल्व। B2G2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि B2G2 में कोई अकाउंट अगर समझो NPA होता है और बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूड डॉक्यूमेंट अगर हम फाइल नहीं कर सकते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन अस। तो अगर ऐसा है तो उसको एक तो ब्रांच से बाहर भेजोगे तो वो फिर अच्छा हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा और ब्रांच का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज ये क्या काम दे सकते हैं उन लोगों को, तो हर एक के पास जैसे क्वालिटी रहते हैं उस तरह से आप ये करो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टारगेट्स। तो टारगेट्स का आपके पास मोबाइल में आपके पास ऑलवेज जो टारगेट्स है, मेजर टारगेट्स में टोटल डिपॉजिट का आपका क्वार्टरली टारगेट्स क्या है। समझो आपने जुलाई में ज्वाइन किया है तो फिर सितंबर का टोटल डिपॉजिट का टारगेट क्या है, दिसंबर का क्या है, मार्च का क्या है। देन टोटल एडवांसेस, देन कासा, देन NPA रिकवरी एंड प्रॉफिट का टारगेट में देखने के, क्योंकि वो जनरली हमारे हाथ में इतना नहीं रहता है, जितने एडवांसेस बढ़ेंगे उतना ही होगा। लेकिन ये मेन है कि टोटल डिपॉजिट, कासा, NPA रिकवरी, टोटल एडवांसेस एंड नाउअडेज हाउसिंग लोन का एक सीरीज में रहता है कि हाउसिंग लोन का टारगेट थोड़ा मैटर करता है आजकल, क्योंकि हाउसिंग का वही एक एडवांस है जो थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहा है आजकल और अच्छा पिकअप है उसमें। तो वो हाउसिंग का सीरीज में जरूरी है आपके पास टारगेट होना, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर्स, हाउ यू शुड बिहेव विद द कस्टमर्स। तो हमने पहले ऊपर टच किया था कि कस्टमर्स में हमने ये बोला था कि टॉप 10 डिपॉजिटर एंड टॉप 10 कस्टमर्स। तो क्या है, हम जब ब्रांच मैनेजर का काम करते हैं, हमारा सक्सेस किस पे है, तो कितना हम बिजनेस बढ़ाते हैं ब्रांच का, वेदर वी अचीव द टारगेट। आपका 10-20% बिजनेस बढ़ता है या ये होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक टारगेट आप पूरा करो, लेकिन आपका जो अगर नॉर्मल ग्रोथ भी है, मोर देन 75% ग्रोथ आप हर एक सेक्टर में करते हो तो भी इट इज गुड। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए क्या है कि आपके पास जो कस्टमर है आप खुद उनके पास अप्रोच होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, किसी भी ब्रांच का 20-25% बिजनेस जो ग्रोथ रहता है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू ही बढ़ता है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी उनके थ्रू ही ज्यादा जाता है। तो इसलिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का काम आप टॉप प्रायोरिटी पे करो। हम क्या करते हैं ना कि बिजनेस ग्रोथ, अभी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कोई बड़ा कस्टमर, बड़ा बोरोवर एडवांस ढूंढ लिया, फिर उसके पीछे पड़ते हैं और एग्जिस्टिंग का छोटा प्रपोजल हम साइड में रखते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। एग्जिस्टिंग जो लॉयल है, लॉयल्टी का उसको बेनिफिट मिलना ही चाहिए। हेलो, हाँ। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके थ्रू ही हमारा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। एग्जैक्टली बात है। और एक मैं बोलूंगा कि विलेज में जब आप काम करते हो विलेज लेवल पे, तो जो विलेज ब्रांच में या किसी भी गांव में ऐसे कुछ कस्टमर्स रहते हैं, 1-2 कस्टमर्स ऐसे रहते हैं कि जिनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रति, आप जिस बैंक में काम करते हो उस बैंक के प्रति लगाव रहता है। तो ऐसे लोग आप ढूंढो और उनके साथ अच्छा लाइजन रखो।
ब्रांच में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो यू कैन अप्रोच देम फॉर सॉल्विंग दो प्रॉब्लम, क्योंकि विलेज में बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ऐसा एक स्ट्रांग आदमी, एक या दो स्ट्रांग आदमी विलेज में होने चाहिए जिनको आप हफ्ते में एक बार कम से कम मिलते रहो। एंड फिर वो एक बार उनके वो फिर खुद होके आपको बोलेंगे कि आपको ब्रांच में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, वी विल बी देयर टू हेल्प यू। दिस शुड ऑलवेज बी देयर। 1 or 2 पर्सन रूरल में काम करते समय आपके गुड बुक्स में होने चाहिए, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिंग इमेज ऑफ द ब्रांच विद कस्टमर्स जेडो एंड एच। तो जेडो के साथ इमेज कैसे बनता है, तो आपकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो आपकी तरफ से इमीडिएट वो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। जोनल ऑफिस में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे इस ब्रांच से अगर कुछ पूछा तो फिर वो इमीडिएटली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फोन कॉल अटेंड होते हैं, इवन सेकंड ऑफिसर को भी बोला गया है कि वो फोन कॉल अटेंड करो, और अगर नहीं भी होता है तो पहले इन्फॉर्म करो कि आज आज मेरे पास जो बहुत ज्यादा काम है लेकिन मैं कल करूंगा, और जिस दिन का आप कमिटमेंट होगे उस दिन का कमिटमेंट पूरा करो। कस्टमर्स के बारे में यही है कि कोई डिसीज क्लेम आपके पास आ गया तो बहुत बार डिसीज क्लेम में कंप्लेंट लेके जाते हैं। डिसीज क्लेम में एक तो लोगों को नॉलेज नहीं रहता है कि क्या करना होता है, किस तरह से करना होता है, और फिर वो बार बार चक्कर काटते रहते हैं। एक तो पहले ही एक अपना खुद का रिलेटिव गया है तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में रहता है कि तो, लेकिन बाद में फिर पैसा भी नहीं मिला टाइम पे बैंक की तरफ से, फिर वो कंप्लेंट एग्रेवेट हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से के जो कंप्लेंट है ना, आप उसके साथ बात करो, उसको बोलो कि नहीं अभी टाइम नहीं है 10 दिन के, लेकिन जिस जिस दिन का आप कमिटमेंट करोगे ना उस दिन उसका काम होना चाहिए, ये बात है। तो वैसे ही लोन में, क्रेडिट में अगर आपको ना बोलना है तो पहले 1 या 2 मीटिंग में ही आप ना बोलो। हम 1 महीने को एक तो उसको 4 बार आने के लिए बोलेंगे, 4 बार आने के बाद 5वीं बार उसका प्रपोजल लेंगे, 5वीं बार आने वो तो इसमें ही महीना चला जाएगा, और 1 1.5 महीने के बाद हम उसको पेपर्स भी लाने के लिए बोलेंगे, वैल्यूएशन भी करवा के लिए बोलेंगे, और फिर हमने क्लियर कट स्कीम पढ़ा नहीं है, फिर बाद में हमारे ध्यान में आएगा कि यार ये स्कीम में बैठता ही नहीं है। तो दिस शुड नॉट बी द केस। आपको जो ना बोलना है इट शुड बी फर्स्ट या सेकंड इंस्टेंस, और जब हाँ बोलना है तो आपको टाइम भी लगेगा तो इट शुड बी विथ प्रॉपरली इन्फॉर्मिंग द कस्टमर। आप उसको बोलो कि 10 दिन के बाद करूंगा, 15 दिन डेट दे, पोलाइटली दे दो, अच्छी तरह से बात करते तो कोई कस्टमर कंप्लेन नहीं करता है। लेकिन आज नहीं जब गया कल नहीं होगा, ये इट शुड नॉट बी द केस। किसी को आपने टाइम दिया है और अगर उस दिन आपका कुछ काम निकल आता है तो आप उसको फोन करके बताओ कि अरे मैंने बोला था आपको आने के लिए लेकिन आज मेरा एक इम्पोर्टेंट काम निकला है। दिस ऑल्सो गिव्स हिम कॉन्फिडेंस कि अरे नहीं साहब हमारा ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन विद जोनल ऑफिस, कम्युनिकेशन विद एचओ एंड कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन विद योर स्टाफ। जब आप किसी भी विजिट में जाओगे या फिर ब्रांच के बाहर में जोनल ऑफिस में जाओगे तो इट शुड बी वेल इन्फॉर्म टू योर सेकंड ऑफिसर। इट इज मस्ट। ब्रांच से आप कहाँ जा रहे हो या उनको मालूम होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम जोनल ऑफिस में आई वाज देयर कि फोन करते हैं, अरे नहीं ब्रांच मैनेजर मालूम नहीं, वो तो बाहर ही रहते, कहाँ रहते हमें पता नहीं। दैट शुड नॉट बी। ये है फैक्ट। बहुत सारे कुछ ब्रांच मैनेजर के बारे में ये रहता है कि अरे नहीं सर तो बाहर रहते हैं, हमें बहुत बता के नहीं जाते। तो इससे आपका इमेज जोनल ऑफिस पे बहुत खराब हो जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि पहले पॉइंट में भी कि इमेज आपका, तो खुद का भी इमेज खराब होता है, ब्रांच का भी इमेज खराब होता है, ठीक है। एंड पंक्चुअलिटी का मैंने बोला कि पंक्चुअलिटी में आप कहीं भी आपको जाना है तो फर्स्ट आप ब्रांच में आओ, ब्रांच में शुरू करके दे दो सब काम, एंड देन यू गो वेयर एवर यू हैव टू गो, एंड इट शुड बी वेल इन्फॉर्मिंग द सेकंड ऑफिसर, और मे बी यू कैन इन्फॉर्म एनीबॉडी। किसी को तो मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। देन यस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज नॉट टू बी डन। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए। हाँ हेलो सर, बिफोर यू गो अहेड विथ व्हाट नॉट टू बी डन, मेरा एक ऐसा था पॉइंट जिसमें फर्स्ट अर्लियर यू हैव मेंशन्ड दैट वंस वी आर जॉइनिंग एज अ ब्रांच मैनेजर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर द inspection report, latest inspection report, so that Yes. we get to know the irregularities or the major irregularities. But उसके साथ साथ how important is it to see the statutory report and concurrent audit report? हाँ यस, स्टैट्यूटरी का मैंने बोला था एक साथ, इंस्पेक्शन एंड स्टैट्यूटरी एंड कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट भी जो लेटेस्ट रहेगा ना वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि कंकरेंट ऑडिट लेटेस्ट मंथ का रहेगा, उसमें सारे उस साल के जो रिपीट भी होते रहते हैं थ्रू दैट कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट वंस, तो वो भी आपको लेटेस्ट जो है वो पता चलता है।
ऐसा। So basically हम देखें तो once we have joined as a branch manager, we should go हाँ, through the latest statutory audit report, latest inspection report, and the latest audit latest report, concurrent audit report, yes, concurrent audit report, and concurrent, if possible, legal audit also, if possible. हाँ, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या होता है ना कि बड़े बड़े ब्रांचेस में नॉर्मली ये लीगल ऑडिट का क्या नहीं होता है। कोई छोटे ब्रांच में एक आधा अकाउंट रहता है, तो इट इज वेरी इजी। लेकिन देखो आपने आप लीगल ऑडिट की बात करते हैं तो क्या होता है कि इंस्पेक्शन स्टैट्यूटरी, पर्टिकुलरली इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो लीगल ऑडिट वाला पॉइंट है ना, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कवर हो ही जाता है। क्योंकि इतना बड़ा पॉइंट नॉर्मली क्या है कि डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट है, वो है, तो नॉर्मली वो कवर हो जाता है। पॉसिबल है तो आप देखो ही, देखना जरूरी है। लेकिन ये जो तीन है ना, तीन रिपोर्ट में मैक्सिमम सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं ऐसा। और आपको देखो कैसे ये पॉसिबल भी नहीं है कि कितना आप देखोगे इमीडिएटली करके, जैसे जैसे आप उधर रहोगे वैसे तो वो सब देखा ही जाएगा। One more thing, sir. कि how important is to check the emails that comes from zonal office? नहीं, वो तो देखो, वो जो ईमेल का बात है ना, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है कि ईमेल का इम्पोर्टेंट मीन्स आधे घंटे में आपका ईमेल तो हमेशा ओपन होना रहना चाहिए। और ईमेल में आप जितना इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेते हो ना, उतना इजी रहता है कि आप इमीडिएटली आपके पास जिसको अलर्ट करना है प्रिंट आउट निकालो, लिख के दे दो उसके बाद उसके ऊपर। लेकिन ये जरूरी है कि आप जनरली क्या होता है ना, हम प्रिंट आउट निकालते हैं, साइन करते हैं मिस्टर सो एंड सो, बस। तो अगर अच्छा मैंने जैसे एग्जीक्यूटिव के साथ काम किया है ना कि जो क्या करेंगे, मेल का प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके ऊपर गाइडलाइन देंगे कि आपको क्या करना है, हाउ यू शुड डू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। वो गाइडलाइन लिखना जरूरी है और फिर उस ऑफिसर के पास या कलर के पास देखो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट एक्शन इज एक्सपेक्टेड ऑन दिस ईमेल। ये अच्छा पॉइंट निकाला राहुल जी आपने, मेरा भी मिस हो गया था। लेकिन आज की डेट में ये ईमेल का कम्युनिकेशन एंड आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैसेज देख के उसको ये करना, क्योंकि व्हाट्सएप इज ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपको व्हाट्सएप में बताया गया है तो आप नहीं बोल सकते कि मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा, क्योंकि व्हाट्सएप, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऑल दीज आर नाउ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये जरूरी है, आपको ग्रुप में ऐड इसीलिए किया जाता है कि इट इज इजी टू गिव इंफॉर्मेशन टू ऑल द ऑफिसर्स और मैनेजर्स एट वन गो। So it is your responsibility to go through the WhatsApp messages from zonal office or HO and you should react to it. तो ये जरूरी है। और जैसे मेल का बताया कि जहाँ मेल में अगर इमीडिएटली हम जवाब देते हैं ना कि हम आपका रिलेटेड ये नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो इमीडिएटली आप उधर से ही जवाब दे दो ना। उसके लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक बार में आपको क्रेडिट का ऑफिसर है तो क्रेडिट का ऑफिसर नहीं जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो जितना आप इजी इमीडिएटली कर सकते हो ना, इमीडिएटली करो। जितना हम प्रोलॉन्ग करोगे ना, उतना पाइलअप हो जाता है। तो पाइलिंग अप अगर नहीं करेंगे ना, तो इट बिकम्स इजियर। और व्हाट इज नॉट टू बी डन, तो इसलिए सैंक्शनिंग पावर्स का बुकलेट आपको बाय हार्ट होना चाहिए। बाय हार्ट होने की जरूरत इसलिए है कि उसमें हमको क्या नहीं करना है, आपका पावर कितना है समझता है, फिर इस पावर के ऊपर हमें नहीं करना है। तो व्हाट इज नॉट टू बी डन में ये आता है कि सैंक्शनिंग पावर्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं करना है। मीन्स उसमें सैंक्शनिंग पावर्स में दो रहते हैं, एक तो लेंडिंग के पावर्स रहते हैं और नॉन लेंडिंग पावर्स भी रहते हैं। तो नॉन लेंडिंग पावर्स में भी ये इंपॉर्टेंट है कि सन्ड्री चार्जेस में कितने अमाउंट तक आप डेबिट डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप सन्ड्री चार्जेस में डेबिट डाला तो इट कैन अट्रैक्ट स्टैप ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिसीज क्लेम का सैंक्शनिंग पावर आपका कितना है नॉन लेंडिंग में, या फर्नीचर आइटम्स आप कितने अमाउंट तक परचेस कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें रहती है, लेकिन ये जरूरी है। नॉन लेंडिंग का लेटेस्ट सर्कुलर एंड लेंडिंग का लेटेस्ट सर्कुलर, ये आपका बाय हार्ट होना चाहिए सैंक्शनिंग पावर्स का। तो ये सैंक्शनिंग पावर्स एंड देन लेंडिंग पॉलिसी नॉर्म्स। क्रेडिट में लेंडिंग पॉलिसी नॉर्म्स में बड़े बड़े देखो, उसमें क्या होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मींस डेविएशन कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन से पार्ट के लिए डेविएशन अलाउड है। देन जैसे लेंडिंग पॉलिसी में आपको स्टॉक ऑडिट कितने अमाउंट के ऊपर है, या फिर वैल्यूएशन के लिए कितने अमाउंट के ऊपर के लिए आपको दो वैल्यूएशन की जरूरत है। मींस अभी आज की डेट में हाउसिंग लोन में 1 करोड़ के ऊपर अगर फाइनेंस है तो दो वैल्यूएशन कंपलसरी है, या कमर्शियल में 5 करोड़ के ऊपर फाइनेंस है तो दो वैल्यूएशन जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें, जैसे मैंने पहले एलएपी में बोला, तो एलएपी में भी 1 करोड़ से ऊपर एलएपी है तो 2 वैल्यूएशन आर नेसेसरी। ये जो है ना, दिस शुड बी बाय हार्ट, क्योंकि आप हर एक बार हर एक सर्कुलर निकाल के नहीं दे सकते। देयर आर 64 पॉलिसीज सर्कुलेटेड बाय द बैंक, वो सारे पॉलिसीज आप पढ़ भी नहीं सकते। पूरे 40 साल के सर्विस में भी हम लोग पढ़ नहीं सके। तो इसलिए
क्या नहीं करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या नहीं करना है, वो इमीडिएटली बोल सकते हो फिर, अरे ये नहीं होगा। इसलिए लैंडिंग पॉलिसी एंड सैंक्शनिंग पावर्स, ये आपको बाय हार्ट होना। लैंडिंग पॉलिसी बाय हार्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ते जाते हो तो आपके पास जॉट डाउन करके रखनी चाहिए किसी डायरी में। एक में जैसे मैंने पहले बोला कि आप बार बार पढ़ते जाते हो, तो फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स पूरे सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ चेंजेस पढ़ लिए तो भी चलेगा। अभी लेटेस्ट पॉलिसी लैंडिंग पॉलिसी का सर्कुलर आया है, तो अगर पहले वाला पॉलिसी आपने पढ़ा है तो इस बार आप सिर्फ चेंजेस पढ़ोगे, इट विल डू। So this is how, in nutshell, we should approach when we will be posted as a branch manager. So I once again give best of luck to all those who are already posted as branch manager and were likely to be posted as branch manager. And कोई भी किसी को कुछ भी guidance चाहिए तो they can always approach Rahul ji and myself for any guidance. Okay, Rahul ji. Yes, sir. Thank you so much for that goodwill gesture, sir. Abhi, this initiative of ours was just to share the knowledge among the masses, so that the people who are joining as a new branch manager, who are joining as a new incumbent, who are very new to this field level working and all, so उनके लिए बहुत beneficial है, because you know we learn from experiences. And जो already जिसके पास experience है, the one who is sharing his experience with us is a great boon to us. So in that way, I guess we have covered almost all the important aspects related to working in the field as a branch manager or either working as an officer. Hope this initiative was useful to you. If you find this initiative useful, please do subscribe to our channel. We will feel motivated, we will get motivated, and we will come out with more such knowledgeable videos. Don't forget to share this video in various platforms, digital platforms, and take care and all the best to all of us. Thank you, sir. Yes. Thank you very much. Thank you, and take care. Thank you.